Friends, hello friends. After a discussion of simple oxides, let us discuss about preparation, properties and uses of ozone. As we know that ozone is present in troposphere of atmosphere above 20 km of sea level. And other thing about ozone is ozone protects us from the harmful effect of UV rays. You know, the skin cancer, burning of skin, etc. are the effects of UV rays. So it protects us from harmful effect of UV rays. Let us discuss about the preparation of ozone. So first preparation, in which only 10% ozone is obtained. This 10% ozone and another oxygen remain as it is. So in this method, first dry stream of oxygen is slowly passed through the silent electric current. So here question arises, what is silent electric current? Silent electric current means high voltage DC current. High voltage DC current is a silent electric current. AC current, slight noise is there, humming is there. Okay, so this does not produce sound, so it is called silent electric current. So when it is passed through this silent electric current, the oxygen is converted into ozone and only 10% reaction is obtained. So this is also called, this mixture is also called ozonized oxygen. The forward reaction is endothermic, so heat is required and that heat is obtained from the high voltage. See, if heat is less, then a reverse reaction is exothermic reaction. Forward reaction is endothermic reaction. So here heat absorb, here heat release. So if heat is less, then ozone is decomposed to the oxygen. So the required heat for this endothermic reaction for the conversion of ozone to oxygen is obtained from this voltage. So high voltage required and DC current required. So sound is not produced. So first method, only 10% ozone is obtained by this reaction. Second method, if we want to get more than 10% ozone, then ozonizer is used. Generally this type of ozonizer we are using in a domestic aquarium. Okay. And by same reaction, ozone is obtained by condensation of oxygen. Okay, so the concentration of ozone is greater than 10%. At large scale industrial level, if ozone is prepared, if you want to prepare ozone, then one ozonizer is used, Siemens-Haltusky ozonizer we have to use, and maximum ozone is obtained. So let me see you Siemens ozonizer. See here, this ozonizer is Siemens ozonizer. In Siemens ozonizer, here is the induction coil. Okay, here a high voltage is passed, pure and dry oxygen is passed here. Here tin foil, and finally by a reaction, ozonized oxygen means ozone is obtained. This ozonizer is a Siemens ozonizer. And another one is modified ozonizer, is called the Siemens-Haltusky ozonizer, in which the reaction is obtained in more proportion. Okay. Now let us discuss about some properties of ozone. So gaseous ozone is pale blue, liquid ozone is dark blue, solid ozone is violet black. Prepare this, my friend. Pale blue is also called light blue, dark blue, dark blue, violet black. Gaseous to solid, color changed. Characteristic of ozone, smell of ozone is the characteristic smell, and if I want to say, the smell is like a chlorine gas.
and a small amount ozone is harmless already. लेकिन concentration अगर 100 ppm से बढ़ जाता है ओजोन का, then it creates suffocation, headache, nausea. Nausea means the feeling like vomiting due to the smell and suffocation. वोमिटिंग के जैसा होता है उसको बोलते हैं न्यूसिया. हेडेक मतलब सर दुखने लगता है. सफोकेशन. ओके, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इनहेलेशन में 100 ppm से बढ़ जाता है. तो आगे चलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो थर्मोडायनेमिकली वो अनस्टेबल है. ठीक है, इट डिकम्पोज इजीली, मतलब कि इसका डेल्टा जी नेगेटिव है डिकम्पोजिशन का. ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होता रहता है. ओजोन कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस आगे भी हमने देखा है कि ऑक्सीजन टू ओजोन एंडोथर्मिक, ओजोन टू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक. सो ये डेल्टा एच इसका नेगेटिव है. हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर ओजोन का हो जाए तो वो एक्सप्लोजिव है. अगर किसी सिलेंडर में हम उसको बाई प्रेशर फिल करते हैं तो वो एक्सप्लोजिव नेचर है, वो ब्लास्ट हो जाता है. ओके, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी हम गिन सकते हैं इसको 6 नंबर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि इस ऑक्सीजन में से हमें एक ऑक्सीजन मिलता है जो हाईली एक्टिव और शॉर्ट लिव्ड है, उसको बोलते हैं नासेंट ऑक्सीजन. ये ओजोन कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन यहाँ उसमें से मिलता है, ये बॉक्स में लिखा है क्योंकि हाईली एक्टिव है. ये ऑक्सीजन अगर हम किसी और को सप्लाई करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है. तो इसीलिए ये ओजोन जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस ऑक्सीजन की वजह से. नासेंट का यहाँ पे मीनिंग लिखा है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, वेरी एग्रेसिव टू रिएक्ट विथ अदर. जब यहाँ से ये निकल जाता है तो ये इतना एग्रेसिव होता है कि कहीं और किसी का ऑक्सीडेशन जल्दी से कर देता है. तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखें तो PbS लेड सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट. ये सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है. देखिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन लेड सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ ओजोन it converted to lead sulfate and oxygen. Ozone converted to oxygen, lead sulfide converted to lead sulfate. और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम देखते हैं. चलिए, तो ये है किसी भी आयोडाइड सोल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड. ठीक है, तो ये आयोडाइड सोल्ट का जो आयोडाइड उसको आयोडीन में कन्वर्ट करता है. तो ये आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ -1 to 0 इंक्रीज बाय 1. ओके, सो ओजोन प्रोड्यूस्ड आयोडीन from iodide salt and this iodine is titrated against sodium thiosulfate in presence of buffer solution जिसका pH है 9.2. ठीक है, तो ये आयोडीन ओजोन के साथ ओजोन कन्वर्टेड टू O2, ओजोन का रिडक्शन होता है. आयोडीन कन्वर्टेड टू I2, आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है. ये एक पूरा रेडॉक्स टाइट्रेशन है. इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आप करिए. यू कैन बैलेंस इट बाय यूजिंग रेडॉक्स रिएक्शन मेथड, आइदर हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. यहाँ पे 2OH- है तो बेसिक मीडियम है. ठीक है, चार्ज को बैलेंस करो और किसी कोई एक मेथड का यूज करके आप इसको बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ये है रेडॉक्स रिएक्शन. 2I- कन्वर्टेड टू I2 एंड ओजोन कन्वर्टेड टू O2. ओजोन का रिडक्शन हुआ, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक है, तो दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन, किसी भी चीज में अगर आपको ओजोन, जितना ओजोन होगा उतना आयोडीन कन्वर्ट होगा, जितना आयोडीन कन्वर्ट होगा वो यहाँ पे हम टाइट्रेट करेंगे. तो इसका टाइट्रेशन करने से हमको पता चलेगा कि कितना आयोडीन है. कितना आयोडीन है तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितने ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये बना है. तो फाइनल इनडायरेक्टली हमें ये पता चलेगा कि ये ओजोन की का प्रोपोर्शन क्या है, क्वांटिटेटिव कितना ये प्रेजेंट है. जैसे क्लियर. आगे चलते हैं. तो ये भी एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है
इंटरेस्टिंग है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो सुपरसोनिक जेट प्लेन में से निकलता है, इट लिबरेटेड बाय द सुपरसोनिक जेट प्लेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. दिस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सुपरसोनिक जेट planes fly at high altitude. So this nitrogen monoxide react with ozone, is converted to nitrogen dioxide and ozone converted to O2. उसको बोलते हैं कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. यहाँ पे ओजोन लेयर कम होता है तो ये अल्ट्रावायोलेट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है. कैसे होता है आगे रिएक्शन में देखते हैं. देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो सुपरसोनिक जेट प्लेन के एग्जॉस्ट फैन से निकलता है वो हाई अल्टीट्यूड में ओजोन के साथ रिएक्ट करता है. ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाय ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन. सो यहाँ ये बोलते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ. आगे चलते हैं तो ओजोन लेयर का जो डैमेज होता है वो ये एक रीज़न है. और रीज़न है हम लोग फ्रेओन्स का यूज़ करते हैं जो कूलेंट आते हैं रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम में. ओके हम यूज़ करते हैं फ्रेओन्स और एरोसोल्स स्प्रेज, जैसे हम हीट मच्छर मारने के लिए यूज़ करते हैं. और काफ़ी कुछ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड स्प्रेज आते हैं, वो सब एरोसोल स्प्रेज हैं. और अदर रेफ्रिजरेंट्स हम जो यूज़ करते हैं तो ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. ये ओजोन लेयर का डिकम्पोजिशन ओजोन का करते हैं ऑक्सीजन में और ओजोन लेयर का डिप्लेशन और उसको डैमेज करते हैं. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. तो देखिए स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. ये स्ट्रक्चर आपको लेविस स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, पता है आपको, ठीक है. तो आपको ये ड्रॉ अपने हिसाब से करिए, ठीक है. ये डबल बॉन्ड वन साइड, डबल बॉन्ड अदर साइड, ये 1 2 इंटर कन्वर्टेड टू ईच अदर. सो फाइनल हम इसको दिखा सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये फाइनल थर्ड स्ट्रक्चर, इसका एंगल है 117 डिग्री. ये ऑल ऑक्सीजन आर sp2 हाइब्रिडाइज. ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 128 पिकोमीटर. यहाँ पे डेटा नोट किया हुआ है. ये डेटा प्रैक्टिकली सही है, 128 एंड 117 डिग्री. सो दिस प्रैक्टिकल डेटा, दिस एंगल एंड दिस लेंथ सपोर्ट दिस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. मतलब कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है. ये कैनोनिकल 1, कैनोनिकल 2 बोथ आर कंटिन्यूअसली इंटरकन्वर्टेड टू ईच अदर. सो फाइनल स्ट्रक्चर इज दिस स्ट्रक्चर नंबर 3. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ ओजोन. तो यूजेस में ओजोन यूजफुल फॉर जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स. जर्मिसाइड मीन्स टू किल germs, साइड्स मीन्स किलर. germs kill, disinfectant, sterilizing water, वाटर को स्टरीलाइज करने के लिए इन एक्वेरियम. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स. ऑयल्स का जो कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको कलरलेस करने के लिए ये ओजोन में से पास किया जाता है. तो ये कलर जो ब्लीचिंग आइवरी, तो एलिफेंट के टीथ जो होते हैं उनको एकदम वाइट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. फ्लोर, येलो कलर या कोई अनवांटेड कलर है फ्लोर में तो उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट ओजोन यूज़ किया जाता है. इसके बाद आता है स्टार्च को एकदम वाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और एक बात कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, तो ये इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है. तो एक बार फिर आप देख लो, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टरीलाइजिंग वाटर, ब्लीचिंग ऑफ ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ KMnO4. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.